For question number 6, this is paper code 3111 ये 3111 पेपर कोड है और ये है ईयर 2022 का. So question number 6, we are going to deal only with the physics part. So question number 6 में दिया है name and state the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field which is perpendicular to it. So you have to name and state means explain it. Okay. So name of the rule is Fleming's left hand rule and we are going to explain it. So for first one, it's Fleming's left hand rule. And I will let you know how to use it to find the direction of the force. So this is Fleming's left hand. Fleming's left hand rule. Okay, so Fleming's left hand rule states that if we stretch, let's say these are the thumb, the forefinger and the middle finger of your left hand is stretched mutually perpendicular to each other. Let's say this is thumb, this is forefinger, and this is middle finger. Now, if forefinger gives the direction of the magnetic field, let's say this is gives the direction of the magnetic field, and middle finger gives the direction of the current, then the thumb, and the condition is that these should be mutually perpendicular to each other, and then the thumb will give the direction of the force, and if we consider all these to be in a plane of paper. Okay, so you can use that to find the direction of the force, and it states that if we stretch, if we stretch finger, middle finger and thumb of left hand, mutually perpendicular to each other. And now if forefinger gives the direction of the magnetic field. So if forefinger gives the अगर forefinger डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की और मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और मिडल फिंगर है करंट की डायरेक्शन में पॉइंटेड, सो मिडल फिंगर it gives the direction of gives the direction of current, then the direction in which the thumb points, so जिस डायरेक्शन में thumb पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स जो कि एक्ट करेगी कंडक्टर में जो कि प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में और ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर. So give the direction of the current, then the direction in which the thumb points gives the direction of the force acting on the conductor. Okay, so this is Fleming's left hand rule. ये है Fleming's left hand rule. और अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर हम लेफ्ट हैंड के थंब फोर फिंगर और मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करें और फोर फिंगर डायरेक्शन देती है
आपकी मैग्नेटिक फील्ड की मिडिल फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की, तो सम आपको डायरेक्शन देगा फोर्स। और इसको हम फोर्स को हम मोशन ऑफ कंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये कंडक्टर जो है वो मोशन दिखाएगा। सो इधर यू, या फिर इसे आप फोर्स बोलो या मोशन ऑफ कंडक्टर बोलो। ओके, और दूसरा इसका पार्ट है एन अल्फा पार्टिकल which is passing through a magnetic field gets projected towards north. So in which direction will an electron project when it passes through the same magnetic field? तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इफ वी, अगर हम ये डायरेक्शन देखें तो हमारे पास डायरेक्शंस है नॉर्थ साउथ। लेट्स these with the directions north south east and west। So now let's read out the question को दोबारा पढ़े तो इसमें दिया अल्फा पार्टिकल while passing through a magnetic field gets projected towards north। So alpha particle जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। So alpha particle is, let's say this is the alpha particle and it's projecting towards north। अब ये है एक magnetic field में, so we don't know the direction of the magnetic field yet, और this is projected towards north। So किस direction में electron project करेगा when it passes through the same magnetic field? Okay, so now आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से एंड इट गेट्स प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करेगा? तो अगर ये आपका अल्फा पार्टिकल नॉर्थ की तरफ है, तो दिस इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सो यहाँ कोई हम रूल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ आपको दिया है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वो आपकी डायरेक्शन है करंट की। और करंट की उल्टी डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की जो इसमें डायरेक्शन है वो हो जाएगी साउथ। तो साउथ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, और पार्ट सेज दैट व्हाट इज ए सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? और पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनानी है सोलेनॉइड के अराउंड। सो दिस इज पार्ट बी, जिसमें हमें बताना है कि सोलेनॉइड क्या है। सो पार्ट बी में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड एक कॉइल है जिसमें आपने बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स देने हैं। सो दिस इज ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ, और कॉइल किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर की। और कैसे? रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। जैसे आपकी कॉपी की स्पिरल बाइंडिंग होती है, जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। So this is a solenoid and now it's connected to a battery। Let's say this is, अब मान लेते हैं ये क्लोज किया, मतलब इसमें करंट जो है, this close की means current is drawn into the solenoid and let this be the battery। ये एक सेल है, ये दूसरा, और ये तीसरा नेगेटिव। और करंट फ्लो करेगा आपका इस डायरेक्शन में, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये जो कॉइल है दैट इज क्लोज रैपली क्लोज्ड, इट इज क्लोजली जो है रैप्ड है इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। सो यू कैन, if you have to write the definition, we can say that this is solenoid is a coil of, और इसमें बहुत सारी टर्म्स है, ये एक टर्न, दो, बहुत सारी टर्न, coil of, we can say many circular turns। और किसकी? ये कॉइल तो है लेकिन किसकी? इंसुलेटेड कॉपर वायर। और उसकी एक पर्टिकुलर शेप है। सो इस केस में अगर बहुत सारी टर्न्स है दैट आर wrapped closely in the form of a cylinder, सो इस सोलेनॉइड की जो रेडियस है एज कम्पेयर टू द लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल है। रैप क्लोजली
मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और रेडियस इसकी बहुत छोटी होगी, क्योंकि इस पे हमने बहुत लंबी जो वायर है उसको टर्न्स में रैप कर करके एक छोटा सा सिलेंडर बना दिया है. So a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. So ये है आपका solenoid. Now coming on to the next part, draw the pattern of magnetic field lines of the magnetic field produced by a solenoid through which a steady current flows. तो सोलोनॉइड तो मैंने बना दिया, अब इसके अराउंड बनाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड्स. इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ. ओके, ये है आपका सोलोनॉइड. जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स रहेंगी वो रहेंगी पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, जो इंडिकेट करती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इसे हम लेबल भी करेंगे. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक एंड से इमर्ज करेंगी, मतलब निकलेंगी, और दूसरे एंड पे जाके मर्ज करेंगी. So emerge and merge and make sure that they do not intersect each other. So they emerge and merge, और जहाँ से emerge करेंगी वो बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और जहाँ पे merge करेंगी वो बन जाएगा आपका साउथ. emerge मतलब यहाँ से निकले, यहाँ और भी है बीच से. तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी. यहाँ से emerge होंगी तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल. ये बिहेव करेगी एक बार मैग्नेट की तरह. यहाँ पे मर्ज होगी, अंदर हो जाएगी ये. तो यहाँ पे मर्ज करेगी वो बन जाएगा आपका साउथ पोल. तो इसका मतलब है आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है आपकी नॉर्थ टू साउथ. अगर इन देखें तो वो इनसाइड, ये है आउटसाइड. आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साइड साउथ, और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी साउथ टू नॉर्थ. सो दिस इज साउथ टू नॉर्थ. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस कि इसके किसी भी पॉइंट पे, अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ जो है सेम रहेगी. So this is how the pattern of the magnetic field lines around a solenoid is drawn. Okay, so we are done with question number 6. Let's move on to the next question number